Hello students, welcome to the Social Work Education Portal. Hope you are all doing well, and I am your educator. My name is Akanksha Sharma and I will be guiding you through NTA UGC NET Paper 2 Social Work, and I will be teaching you Unit 2 Sociology. So this is all about me, and I will be guiding you regarding Sociology unit in Unit 2 paper social work. So my name is Akanksha Sharma. I had done my graduation from Delhi University, post graduation from Banaswati Vidyapeeth, and I have work experience of 3.5 years in NGO sector and 2 years in education sector. And currently, I am pursuing PhD in sociology from the Dayalbagh Educational Institute, Agra. So this is my Telegram link. If you are willing to crack NTA UGC NET exam, you can join this link, and I will be particularly dealing with sociology subject. So this is new batch. New batch has already been started. So paper one is covered by Miss Arpita ma'am. Social work paper is covering by CP Yadav sir, and I will be taking your sociology unit, that is unit 2 of social work. Basically, it is very vast unit, and women studies will be covered by another ma'am. So you can contact me on Telegram, and you can join this link if you are aspirant of NTA UGC NET or any other competitive exam. So basically in this course we will be covering concepts of sociology, and then we will be dealing with questions of SET exams, questions of NET exam, UGC NET, question asked in PCS, state PCS exam, as well as UPSC exam. So as we all know that NTA level high कर रहा है both paper 1 and paper 2 का, so we will be dealing in that particular way, that particular strategy only. So in previous lecture I taught you about what is social structure, and today we will be dealing with what is social institution. So as you can see in this image, social institution means family, education, religion. So we will be dealing with it. So imagine this is our society. So why in definitions the term complex is used for social institution? The reason is social institution refers to complex forms that reproduce themselves, such as political institution like government, education, family, state, etc. So it is complex because it is interlinked. Imagine this is society, and this is institution of family, this is religion, this is marriage, this is education, this is state, and this is government. सो जब हम इन सब चीज़ों को मिला देते हैं तब एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है. तो जो फैमिली है वो हमारा अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन अलग फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एंड मैरिज अलग है, किनशिप अलग है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर सोशल इंस्टीट्यूशन होती हैं, और ये एक सोसाइटी को डेवलप करती हैं. सोशल इंस्टीट्यूशन को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. जैसे कि आप मॉकटेल का एग्जांपल ले सकते हैं. हम काफ़ी ड्रिंक्स मिला देते हैं, वैसे ही जब हम काफ़ी सोशल इंस्टीट्यूशंस को मिला देंगे तो एक सोसाइटी बनेगी, एक सोशल स्ट्रक्चर बनेगा. A social institution is a complex, integrated set of social norms organized around the preservation of a basic societal value. तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और उसमें मिक्सचर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स होते हैं. मतलब सोशल नॉर्म्स अलग अलग भी हो सकते हैं. जैसे अमेरिका के सोशल नॉर्म्स अलग होंगे, इंडिया के अलग होंगे. इंडिया में भी हम बात कर लें तो यूपी के जो सोशल नॉर्म्स होंगे वो अलग होंगे, हरियाणा के अलग होंगे. जैसे कि हम आपने सुना होगा कि खा पंचायत, तो हरियाणा में खा पंचायत को काफ़ी माना जाता है. A social institution is an interrelated system of social rules and social norms. तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है वो बात करता है सोशल रूल्स और सोशल नॉर्म्स के बारे में. सोशल रूल्स का मतलब इधर है कि
जो भी रोल्स हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि अभी हम पहले इंसान जब पैदा होता है तब वो एक बेटा या बेटी होता है, सन या डॉटर होता है, तो वो एक रोल निभाएगा, तो उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिर बाद में जब वो कुछ बन जाएगा, तो जैसे कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपसे आपके गाइड कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स कुछ अलग एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये सब सोशल रोल्स में आ गए। एंड सोशल नॉर्म्स, जैसे कि घर पे रूल्स अलग होंगे एंड कॉलेज में रूल्स अलग होंगे, तो सोशल नॉर्म्स हर जगह के अलग होते हैं। A social institution is an interrelated system of social rules and social norms which is organized around the satisfaction of an important social need or social function. कि जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं या सोशल रोल्स होते हैं, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि वो सोशल नीड को सेटिस्फाई कर सके। In other words, social institutions are organized patterns of beliefs and behavior that are centered on the basic social need. तो सोशल इंस्टीट्यूशन कम शब्दों में कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है किसका, हमारे बिलीफ सिस्टम का, कि हम क्या बिलीव करते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो आप बिलीव करेंगे कि, या तो आप रिलीजन में बिलीव करेंगे या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेंगे, तो उसी का एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है। या फिर आप इस चीज़ को सोशोलॉजी की लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि पहले फैमिली होती है। फैमिली भी दो तरह की होती है, एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फैमिली के बाद आ जाता है सोशलाइजेशन, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद सोशलाइजेशन में भी काफ़ी तरह की सोशलाइजेशन होते हैं। उसके बाद मैरिज का कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है जो घूम फिर के वापस आएगा ही आएगा। सो हम जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली आती है, एजुकेशन आता है, गवर्नमेंट आती है, इकोनॉमिक्स आती है, रिलीजन आता है, और इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन आ जाएगा, हमारी इकनॉमी आ जाएगी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट ने दी हैं। तो आपको क्या करना है, आप या तो एक टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट का नाम लिखिए और यहाँ पे कीवर्ड्स लिखिए। तो आपको कीवर्ड्स पिक करनी है। आप अगर 2 दिन में 3-4 बार नज़र मारेंगे अपने नोट्स पे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैकआइवर एंड पेज ने कैसे डिफाइन किया था सोशल इंस्टीट्यूशन को? मैकआइवर एंड पेज ने बोला था, सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन एस्टैब्लिश्ड फॉर्म और द कंडीशन ऑफ अ प्रोसीजर। किसी भी प्रोसीजर की जो भी एस्टैब्लिश फॉर्म्स होती हैं या कंडीशन होती हैं, उसको सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ये बोला था मैकआइवर एंड पेज ने। कि मान लीजिए एक प्रोसीजर है, जैसे आप लोग अगर ऑफिस देखते होंगे तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो उसके जो स्टैब्लिश फॉर्म होते हैं, वैसे ऑफिस अलग एग्जांपल हो गया। मान लीजिए फैमिली है, फैमिली के बाद चाइल्ड होगा, फिर एजुकेशन आएगी, फिर सोशलाइजेशन आ जाएगा, और उसके बाद पीयर ग्रुप वगैरह आएगा, स्कूल आएगा, रिलीजन आएगा, उसके बाद मैरिज आ जाएगी। तो एक पैटर्न है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तो उसको एन एस्टैब्लिश फॉर्म और द कंडीशन ऑफ अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, तो इसको बनाए रखने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। मैकआइवर एंड पेज ने बोला था। Malinowski defined social institution as a group of people united by common interest, endowed by material equipment, following rules of their traditions or agreement, and contributing to the work of culture as a whole. तो मैलिनॉस्की ने बोला था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका कुछ कॉमन इंटरेस्ट होगा। एंडोड बाय मटेरियल इक्विपमेंट, तो आप ये कीवर्ड ले सकते हैं कि मटेरियल इक्विपमेंट की बात की है मैलिनॉस्की ने, जिसमें फॉलोइंग रूल्स ऑफ देयर ट्रेडिशन, वो अपने ट्रेडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कल्चर के लिए एज अ होल। तो मान लीजिए कि एक फ्रेंड सर्कल है, यहाँ पर
ये ग्रुप है। कॉमन इंटरेस्ट भी है। मटेरियल इक्विपमेंट भी होगा। आप लोगों ने रूल बना रखा होगा कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे या हम ये कपड़े पहनेंगे, रूल्स बना रखे होंगे। अपना एक कल्चर बना के रखा होगा। तो आप ऐसे अपने पर्सनल एग्जांपल भी ले सकते हैं किसी की भी डेफिनेशन समझने के लिए। तो इसमें की टर्म्स हो गए ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन इंटरेस्ट, मटेरियल इक्विपमेंट, रूल्स ऑफ देयर ट्रेडिशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्क ऑफ कल्चर। वर्क ऑफ कल्चर भी हो गया। अब बर्ट्रैंड ने कैसे डिफाइन किया है सोशल इंस्टीट्यूशन को? उन्होंने बोला है Bertrand defined social institution as institution are system of social relationship for meeting various felt human needs. इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सिस्टम होते हैं सोशल रिलेशनशिप के, जिससे कि जो भी ह्यूमन नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। फॉर मीटिंग वेरियस फेल्ट ह्यूमन नीड्स। फेल्ट ह्यूमन नीड्स यहाँ पे कीवर्ड हो गया। सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। Then next, H. E. Barnes defined social institution as a social structure and machinery through which human society organizes, directs, and executes the multivarious activities required to society for human needs. तो एच ई बार्न्स ने सोशल इंस्टीट्यूशन को अलग वे में डिफाइन किया है। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन इज द सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी। तो ये कीवर्ड हो गया क्योंकि ये इन्होंने ही यूज़ किया था। थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है, डायरेक्ट करती है, एग्जीक्यूट करती है मल्टीवेरियस एक्टिविटीज़ को जो कि सोसाइटी की ह्यूमन नीड्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट, सोशल स्ट्रक्चर एंड मशीनरी, ये एच ई बार्न्स के कीवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हम आएंगे बोगार्डस पे। बोगार्डस डिफाइंड सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर organized to meet the particular needs of the people through well-established procedure। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द पीपल थ्रू वेल एस्टेब्लिश प्रोसीजर। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ऑर्गेनाइज टू मीट द पर्टिकुलर नीड्स। पर्टिकुलर नीड्स की बात की है तो जहाँ पे भी डेफिनेशन में पर्टिकुलर नीड्स की बात की जाए तो बोगार्डस को याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन नीड्स की बात की है, केवल बोगार्डस ने पर्टिकुलर नीड्स पे फोकस किया है। एंड ये अनदर कीवर्ड है वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। तो ऐसे आप अपने कीवर्ड बना सकते हैं। एक चार्ट पेज लीजिएगा, A4 शीट, सोशोलॉजिस्ट के नाम लिखिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन और यहाँ पे कीवर्ड, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि क्या क्या मिलकर एक सोशल इंस्टीट्यूशन को बनाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसको आप स्टोरी के तौर पे याद रख सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट एंड हैविंग मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज होती हैं उनके पास, नॉर्म्स होते हैं मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो मिलकर सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये आप अपने ऊपर भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और फिर वो मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं और सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं। This is diagram of elements: economic and industrial, social institution, political social institution, religious social institution, ethical social institution, educational and scientific social institution, communicative institution, aesthetic and expressional institution, health and recreational institution। तो अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सोशल इंस्टीट्यूशन आर यूनिवर्सल। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिया में देखने को मिलेगा, या आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा, यूरोप में भी देखने को मिलेगा। तो इट इज़ यूनिवर्सल, ये आपको हर जगह मिलेगा। सोशल इंस्टीट्यूशन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अक्रॉस कल्चर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशलाइजेशन, स्कोप, फॉर्मेलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर बेसिक नेचर
and purpose are similar everywhere. तो सोशल इंस्टीट्यूशन टाइम टू टाइम डिफर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में केवल बॉयज़ पढ़ते थे, एजुकेशन सिर्फ बॉयज़ को मिलती थी। फिर काफ़ी मूवमेंट्स हुए कि गर्ल्स को भी देना चाहिए। आप पढ़ेंगे एक यूनिट में मूवमेंट्स के बारे में, तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी मूवमेंट्स हुए, उसके बाद गर्ल्स को पढ़ने को मिला। अब एजुकेशन जो हो गई है वो यूनिवर्सल हो गई है, तो काफ़ी पॉलिसीज़ भी आई, अभी काफ़ी स्कीम्स भी आती रहती हैं गर्ल्स की एजुकेशन को लेके। तो बेसिकली टाइम टू टाइम डिफ़र करते हैं, ये कल्चर टू कल्चर डिफ़र करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में डिफ़र करते हैं, स्पेशलाइजेशन में डिफ़र करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़र करते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक नेचर और पर्पस जो है वो हमेशा सेम रहता है एवरीवेयर। सोशल इंस्टीट्यूशन आर रेजिस्टेंट टू चेंज, हैंस दे टेंड टू परसिस्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एजुकेशन का एग्जांपल दिया कि ये वक्त के साथ बदलते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, तो अगर ये वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एजुकेशन पहले केवल बॉयज़ को मिलती थी, गर्ल्स को नहीं मिलती थी, तो वक्त के साथ बदलाव आया, इसलिए ये परसिस्ट कर पाई, एग्जिस्ट कर पाई। ईच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। हर इंस्टीट्यूशन के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन जिनको हम मैनिफेस्ट, एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो मैनिफेस्ट का मतलब ये है, प्राइमरी फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो सबको पता होता है कि एजुकेशन होगा तो ये इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन, इसको हम इनडायरेक्ट, हिडन या लेटेंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और हिडन होते हैं। लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। तो जैसे कि एजुकेशन का पर्पस होता है कि बच्चे को एजुकेट करना, उसको अवेयर करना, तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा, ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सेकेंडरी फंक्शन क्या हो सकता है एजुकेशन का। तो ये आज की क्लास थी, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं जो हिडन फंक्शन हो सकते हैं एजुकेशन सिस्टम के। सो टेक केयर, वी विल मीट in next session.